Good evening, everyone. On behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited, I could like to welcome all the attendees present online. I am Ruxars. Today's session is going to be about training on easy to resolve mismatch transactions in Tally Prime 5.0. So before moving ahead on the topic, let's take an introduction of Rajlakshmi Solutions (RSPL) into a various segments to serve their customers like sales, service, solution, implementation and development. We are partners to multiple OEM like 5-star partners, gold partners for Bittrex 24, channel partners for Great HR, channel partners for SAP B1. I am conducting today's session. I am Ruxar. PPT by Payal and a live demo by Tarun sir. Miss Payal, are you available? Yes, Please go ahead. yes. My screen is visible? Yes, it is. Okay. Hello everyone, myself Payal Mistry, representing of behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. We are is a Rajlakshmi family. Welcome to all of you. So today's topic is a resolve mismatch transaction in Tally 5.0, Tally Prime 5.0. First point, a certain transaction in Tally Prime 5.0. The GST R1 report in TelePrime comes with an easy, intuitive classification of all such GST related errors. You can drill down from the certain transaction section to view all such certain details and correct them easily. Even if you have hundreds of transactions, it will be pretty easily to find and fix a particular errors. Moreover, if you think that a certain details are correct and you want to process with the test details, Teleprime also provides you with the option to accept such a transaction access. तो Teleprime GST R1 रिपोर्ट ऑल GST error and easy और क्लासिफिकेशन के साथ आती है. आप लोग भी असंटेड ट्रांजेक्शन का सेक्शन में ड्रिल डाउन करके सारे असंटेड डिटेल्स देख सकते हैं एंड इजीली एरर प्रॉपर कर सकते हैं. फिर चाहे आपके पास 100 ट्रांजेक्शन हो फिर भी आप इजीली एरर फाइंड कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपके सर्टेन डिटेल्स और करेक्ट है या उसकी डिटेल आगे प्रोसेस करना चाहते हैं तो टेलीप्राइम आपको इजी ट्रांजेक्शन्स को एक्सेप्ट भी करता है, ऐसे ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट भी करता है. सेकेंड पॉइंट, इनवैलिड और मिसिंग इन्फॉर्मेशन. तो इनवैलिड और मिसिंग इन्फॉर्मेशन मीन्स आपको टेलीप्राइम में जो भी मिसमैच या एरर्स आते हैं वो यहाँ पे 7 पॉइंट दिए गए. फर्स्ट पॉइंट, जीएसटी रिकंसिलिएशन डिटेल ऑफ द पार्टी आर इनवैलिड और not specific. Second, taxability types is invalid or not specific. Third point, HSN SSE is invalid, mismatch or not specific. Fourth point, unable to determine the transaction type. Fifth, applicable tax ledger is not selected. Sixth, mismatch in information between master and transactions. 7 point, mismatch between the place of supply of the party and the nature of the supply. File. Yes. Your skin is not visible. Yes, please go ahead. आप लोग यहाँ पे देखे रहेंगे, यहाँ पे 7 पॉइंट है जिससे आप यहाँ पे टैली में एरर फेस हो रहा है. जैसे कि आप इनवॉइस जनरेट करते हैं, ई-वे बिल जनरेट करते हैं, तो आप लोग को भी इसमें से 7 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट्स में एरर शो करता है. तो इसके रिलेटेड आपको यहाँ पे बताया गया है कि ये 7 पॉइंट को क्लियर कैसे करना है. वो आगे हम लोग टेलीप्राइम में आपको बताएंगे. नेक्स्ट स्लाइड. File GST R1 using TelePrime Release 5.0. So step 1, upload. Step 2, download and reconcile. Step 3, file. Filling your return might sound like a daunting task, but TelePrime is here with a delightfully quick solution. You can now file your GST R1 right here from TelePrime without the need from
visiting the GST portal or carrying out any other manual activity. आप जो टेली प्राइम में रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो एक आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन टेली प्राइम एक डिलाइटफुली सॉल्यूशन है। इसके साथ आप टेली प्राइम में से GST-R1 फाइल कर सकते हैं और आपको अभी टैली के पोर्टल्स में भी जाने की जरूरत नहीं है, वो पूरा आप यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं। टैली प्राइम सिंप्लीफाई योर GST-R1 with easy. Choose or prefer filling the method. So first, digital signature certificate (DSC), electronic verification code (EVC), flexible filing option. So resume or restart the filing process at your convenience. तो आपकी प्रोसेस को एक साथ फाइल के प्रोसेस करने के लिए फर्स्ट रिस्टार्ट से हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा। Handle integration smoothly. The Tally Prime assists in resolving mismatch between your records and portal data. तो टैली प्राइम में आपके रिकॉर्ड और पोर्टल के डेटा के बीच एक मिसमैच रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। नो मैनुअल डाउनलोड और एक्सपोर्ट नीडेड फ्रॉम ट्रांजैक्शन मिसमैच। कोई भी ट्रांजैक्शन को मिसमैच के लिए अभी मैनुअल रिपोर्ट एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। टैली प्राइम टाइम सेविंग फीचर्स। तो स्ट्रीमलाइन फाइलिंग प्रोसेस अलाउज यू टू फोकस ऑन बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो टाइम सेविंग मतलब स्ट्रीमलाइन फाइलिंग प्रोसेस आपको बिजनेस ग्रोथ और एक्सपेंशन फ्रॉम फोकस करने का अलाउ करता है। क्लियर ट्रांजैक्शन विजिबिलिटी। तो ऑन द स्टेटस ऑफ योर ट्रांजैक्शन विद इन टैली प्राइम। तो टैली प्राइम में आपकी ट्रांजैक्शन विजिबिलिटी ऑलवेज अपडेट करनी चाहिए। थैंक यू फॉर माय साइड। तरुण, आर यू हियर? Yes. Okay, continue. Okay. My screen is visible. Yes. Okay. So good evening everyone. My name is Tarun and आज मैं आपको इस सेशन के अंदर बताने वाला हूँ कि हम रिटर्न फाइलिंग करने के लिए रिटर्न फाइलिंग करने से पहले हम क्या क्या चेकलिस्ट फॉलो करेंगे। अगर अनसर्टेन या मिसमैच में अगर कोई एंट्रीज आ रही है आपकी तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है, हम वो इस सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ GST-R1 में जाएंगे। GST-R1 के अंदर यहाँ पर आपकी जो स्क्रीन है उस पर देखिए अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस के अंदर कुछ एंट्रीज आ रही हैं। हालांकि ये पीरियड जो है वो प्रीवियस है, ओल्ड डेटा है, तो मैं इसके थ्रू आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बट जब आप मंथली डेटा प्रिपेयर करते हैं तो उसमें आपको देखते हुए चलना है कि आपकी कोई भी एंट्री अनसर्टेन में नहीं होनी चाहिए रिटर्न फाइल करने से पहले। अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस के अंदर जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पर कुछ एरर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे फर्स्ट आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ट्रांजैक्शंस विद इनकम्प्लीट ऑब्लिक मिसमैच इन इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर नंबर 9 काउंट आ रहा है। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर हेडिंग में आप देखेंगे तो फर्स्ट एरर अपने को दिखा रहा है इनवैलिड और मिसिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर HSN/SSC इज इनवैलिड, मिसमैच और नॉट स्पेसिफाइड। मतलब कि HSN कोड आपने या तो डाला नहीं है या तो गलत डाला है। ठीक है, तो वो आपको देखना है। जैसे ये एंट्री हमने बोला, इसके अंदर यहाँ पर एंट्री को ओपन कर लेते हैं। ये एंट्री अपनी ओपन हुई है। यहाँ पर मैं Alt-A करता हूँ टैक्स एनालिसिस के लिए। आप Alt-A भी कर सकते हैं। Alt-A करके यहाँ पर टैक्स एनालिसिस खुलेगा। आप यहाँ पर Alt-F1 कर लेंगे तो ये डिटेल व्यू में ओपन हो जाएगा। सो इस विंडो से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये पार्टी है, आपकी पार्टी महाराष्ट्र की है। ऊपर आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे दिख रहा है। फिर रजिस्ट्रेशन डिटेल आ जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, देन प्लेस ऑफ सप्लाई आपको मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग फिर आप नीचे यहाँ पर आएंगे और जितने भी स्टॉक आइटम्स आपने लिए हैं उन सभी के सामने आपको देखना है कि HSN कोड और टैक्स रेट डाला हुआ है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले आइटम में डाला हुआ है, देन सेकंड वाले आइटम में डाला है बट रॉन्ग डाला है, ओनली 73 लिखा है तो वो रॉन्ग है। ठीक है, और यहाँ पर आप नीचे भी देख लेंगे, बाकी ठीक है, 4 डिजिट के एटलीस्ट चले होते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाले आइटम को जाएंगे हम। सेकंड वाले आइटम पर गए, अपनी एंट्री जो है वो 4 मार्च की है, मैंने यहाँ पर ऑल्टर किया।
ऑल्टर करके यहाँ पे देखिए इसके अंदर स्टॉक आइटम रॉन्ग डाला हुआ है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर उसको करेक्ट कर दूँगा। ठीक है, वो करके जब मैं उसको एंटर करूँगा तो यहाँ पर वो डेट पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेट या तो आप वाउचर डेट डाल सकते हैं। ठीक है, जो वाउचर डेट है अपनी जैसे 4 तारीख है, आप उससे पहले की डेट डाल सकते हैं, तो ही वो एंट्री पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, बट इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि वो पर्टिकुलर आइटम अगर और भी बिल्स में यूज़ हुआ है या इनवॉइस बना हुआ है उन बिल्स का, तो उस केस में आपको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर हम डेट डाल देंगे, देन इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ पर इस वाली स्क्रीन पर आप देखेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने एज पर मास्टर लिया, ये टैक्स रेट आया अपना 18%, देन एज पर मास्टर, इसके बाद यहाँ पर ये स्टॉक आइटम दिखा रहा है, आइटम वैसे HSN को एंटर किया और इसके बाद मैं इसको एक्सेप्ट कर दूँगा। ठीक है, डेट हम यहाँ पे ठीक कर लेते हैं, इसको मैंने एंट्री को एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, तो वो एंट्री यहाँ से हट जाएगी। नंबर ऑफ काउंट अब यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से ठीक करना होता है। सेकंड चीज़, इसमें कुछ एरर्स, कुछ बिल्स ऐसे भी मिलेंगे आपको जिनके अंदर यहाँ पर जो पर्टिकुलर आइटम या लेजर में एरर होगा ना HSN का, तो यहाँ पर दिखा देगा आपको नीचे उसका नाम कि इस वाले आइटम में प्रॉब्लम है, आपने इसमें डाला हुआ नहीं है। देखो जैसे यहाँ पर कितने आइटम है, ये फर्स्ट वाला आइटम है, इसमें नहीं है, रॉन्ग है, इसमें भी रॉन्ग डाला हुआ है। 5 डिजिट का कोई HSN कोड नहीं होता, या तो आप 4 डिजिट का मेंटेन करेंगे, या आप 6 डिजिट का मेंटेन करेंगे, या आप 8 डिजिट का मेंटेन करेंगे। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड यहाँ पर ये आ गया। तो ये 3 आइटम्स के नाम अगर आप देखेंगे ना, तो इस यहाँ पर इस विंडो पे आपको दिख जाएगा, उसके जस्ट नीचे जो बिल होगा आपका, इससे भी आपको क्विकली वेरीफाई हो जाएगा कि ये आइटम में मैंने रॉन्ग कहीं ना कहीं डाला हुआ है। ठीक है, और अगर आपको पता लगता है कि वो आइटम में आपने करेक्ट किया है लेकिन वो बिल यहाँ से रिमूव नहीं हुआ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बिल को सेलेक्ट करके एक्सेप्ट एजेस कर सकते हैं। जैसे कि 5.0 से पहले वाली रिलीजेस में ये वर्क नहीं करता था ये ऑप्शन। ठीक है, तो अब ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई है, अब ये वर्क करेगा आपका, और इस तरीके से आपको एंट्री खोलना है और उसको करेक्ट कर लेना है। जैसे ये वाला आइटम है, इस आइटम के अंदर हमने अभी, ठीक है, यहाँ पे भी करना पड़ेगा सेम चीज़, ये डाल करके, और बिल का डेट हम यहाँ डाल देंगे। बिल का डेट 9 मार्च है। ठीक है, तो ये करेक्शन करके फिर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर वो सेम चीज़ आ जाएगी। देन नेक्स्ट वाला आइटम भी देख लेंगे हम ऑल्ट करके। ये सिलिकॉन वाला जो आइटम है, इसके अंदर भी सेम चीज़ करना है आपको। यहाँ पर आप जाएंगे, इसको अपडेट करेंगे, देन यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे। यहाँ पे 23 आ जाएगा, इसको फिर कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये आपका फोर्थ लास्ट आइटम जो है, इसमें जाएंगे और इसको भी सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पर डेट मेंशन कर देंगे, 23 आएगा, 23। ठीक है, अब इसको किया एक्सेप्ट, देन इसको सेव कर देंगे, तो वो एंट्री वहाँ से अपनी हट जाएगी। अब ये देखिए, मैंने जैसे उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि 2 वाउचर्स ऐसे और हैं इसके, तो ये बोल रहा है अपडेट करने के लिए, कि यही सेम चीज़ आपकी उन वाउचर्स में भी अपडेट हो जाएगी, तो मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है, तो उसके साथ साथ 2 वाउचर्स रिजॉल्व हो गए। ठीक है, तो HSN वाले तो एरर्स आपको इस तरीके से रिजॉल्व करने हैं। फिर यहाँ पर नीचे देखिए एक एरर और आ रहा है, मिसमैच बिटवीन एक्सपेक्टेड टैक्स अमाउंट एंड मॉडिफाइड टैक्स अमाउंट इन ट्रांजेक्शन। इसके अंदर क्या करना है आपको, आप यहाँ से एंटर करेंगे, एंट्री को ओपन करेंगे, और फिर यहाँ पर आपको देखना है ऑल्ट ए करके, ऑल्ट ए किया, टैक्स एनालिसिस ओपन हुआ, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में बॉटम में आप देखेंगे ना, तो यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है आपको एज पर कैलकुलेशन और एज पर ट्रांजेक्शन।
और दोनों में अमाउंट में डिफरेंस भी है, 0.2 का डिफरेंस है यहाँ पर, 10,281, 0.58 और 0.62। अब यहाँ पे माइनर सा डिफरेंस है, हम यहाँ जाएंगे, पहले तो हम ये देखेंगे डिफरेंस आया किसमें है। ये लेजर एक बार ऑल्टर करके देख लेंगे, इसमें अगर हमने राउंडिंग लगा हुआ है तो, क्योंकि राउंडिंग आपको यहाँ पर नहीं लगाना होता है, ठीक है। तो इसकी अमाउंट को मैं क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट मैनुअली डाला हुआ है, तो मैं स्पेस करके एंटर कर दूँगा। तो वो अमाउंट जो है यहाँ पर देखिए, पहले 80 डाला हुआ था, अभी वो ऑटोमेटिक में लिया कितना, 79। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, कोई भी फिगर अगर ले रहा है ऑटोमेटिक, आपको वो भी डाल के रखना है, आपको मैनुअली चेंज नहीं करना है। अब मैं इसको कंट्रोल कर दूंगा, ठीक है। तो ये एंट्री भी अपनी यहाँ से हट जाएगी। अब यहाँ पे देखिए राउंड ऑफ का जो लेजर है उसको मैंने करेक्ट किया, तो उसके रिगार्डिंग 4,300 वाउचर्स जो है वो अपडेट हो। तो ये अपडेशन का जो प्रोसेस पहले होता था उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग होता था, अब वो भी यहाँ पर सॉर्ट आउट हुआ है और उसमें परसेंटेज भी आएगा आपका कि कितने परसेंटेज तक अभी हो रहा है, तो वो चीज़ भी है। अभी ये स्टक नहीं होगा, आपको ड्यूरिंग द टाइम आप सेकंड चीज़ अगर कुछ ओपन करना चाहते हैं तो मिनिमाइज करके वो भी कर सकते हैं। तो अभी इसको होने देना होगा। अब ये करने के बाद यहाँ पर कुछ एरर्स और भी आएंगे, जैसे कि HSN SSC रिलेटेड डिटेल्स आर ओवररिडन इन ट्रांजैक्शन, और GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स आर ओवररिडन इन ट्रांजैक्शंस। तो उन एंट्रीज में क्या करना होता है, हम एंट्री को जब ओपन करेंगे तो वहाँ पर मैं बताता हूँ आपको क्या चीज़ें करेक्ट करनी है, क्योंकि एंट्री के टाइम पे कभी भी आपको ओवरराइड नहीं करना है। अगर आप ओवरराइड करेंगे तो वो एंट्रीज आपकी सारी अनसर्टेन में ही जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे वो अनसर्टेन में जाएंगी, फिर वहाँ से आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आप फिर भी ओवरराइड करके ही लगाना चाहते हैं तो। अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप अपने जो मास्टर्स हैं उसके अंदर मेंशन करके चलें, जो स्टॉक आइटम आपने बनाया, या लेजर में अगर आप डाल के रखना चाहते हैं। अगर कॉमन टैक्स रेट होता है तो आप लेजर के थ्रू भी लेके चल सकते हैं, जैसे 18% या 12%, 5% आपने लेजर में डाला और लेजर के थ्रू आप हर आइटम में वो लेते चले, तो वैसा करके भी कर सकते हैं। ये 50% तो ऑलमोस्ट हो गया है। रिटर्न फाइलिंग से पहले एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, जो भी पर्टिकुलर पीरियड रहेगा आपका, उसमें जब आप अनसर्टेन मिसमैचेस सारे रिजॉल्व कर लेंगे, तो वो रिजॉल्व करने के बाद आप जब उसका रिटर्न फाइलिंग करने जाएंगे तो उससे पहले एटलीस्ट आपको एक बार HSN समरी को ज़रूर देखना। HSN समरी में कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी आइटम में या किसी भी उसमें UQC यूनिट क्वांटिटी कोड जो होता है वो भी स्पेसिफाइड होना चाहिए, ठीक है। तो वो UQC का ध्यान रखना है और HSN का ध्यान रखना है। मिनिमम 4 डिजिट या 6 डिजिट या 8 डिजिट में मेंटेन करना है। तो वो करने के बाद जब आप समरी टोटल मैच करेंगे, फिर ITC आप वहाँ पर देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको रिटर्न फाइल करना होगा। अभी रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस भी इजी हो गया है, क्योंकि डेटा आपको मैनुअली अपलोड नहीं करना है, टैली से ही आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो।
ऑलमोस्ट ये हो चुका है 90%, 95%। जितनी भी एंट्रीज हैं जिसमें राउंड ऑफ का लेजर लिया हुआ था तो वो सारे बिल्स अपडेट हुए। सो इस एंट्री को कैसे करना है रिजॉल्व, उसमें भी सेम चीज़ आपको देखनी है। यहाँ पे भी देखिए माइनर सा ही डिफरेंस है 80 और 82 का। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो जीएसटी की फिगर है उसको ओवरराइट करके डाला है, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, राउंड ऑफ तो इवन हट ही गया है, तो इसको मैं यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर दिया तो ये एंट्री भी आपकी यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ से कुछ और एरर्स आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने डेटा कम है इसलिए मैंने पूरे साल का ही पीरियड लगाया है, तो यहाँ पर मल्टीपल एरर्स आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, वन बाय वन एरर को चलते हैं। जैसे फर्स्ट वाला एरर आ रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑफ पार्टी आर इनवैलिड और नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, इस पर हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद इसका एरर का मतलब होता है कि जो पार्टी की डिटेल्स है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग डली हुई है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। हम पार्टी का लेजर ऑल्टर करेंगे और वहाँ से उसको चेक करेंगे। जैसे कि ये लेजर है, इस लेजर के अंदर देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप जो है वो रेगुलर सेलेक्ट किया हुआ है, बट उसका जीएसटी नंबर ब्लैंक है, डाला हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो वो आपको मेंशन करना होता है। अगर आप वो नहीं मेंशन करेंगे तो एंट्री आपकी अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस में जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। तो इसको से डालने के बाद जैसे आपने लेजर अपडेट कर दिया, अपडेट करने के बाद जब आप यहाँ पर आएंगे एंटर करके ये वाली स्क्रीन पे, इस वाली स्क्रीन पर आपको क्या करना होता है, इसको अपडेट करना जरूरी होता है। किसी भी दूसरी पार्टी के नाम पे एंटर करना है और फिर बैंक जा करके वो पार्टी के नाम पे वापस से एंटर करना है, ताकि उसकी डिटेल्स जो आपने डाली हैं वो वहाँ पर अपडेट हो जाए। फिर वो करने के बाद एंट्री को आप कंट्रोल ए करेंगे तो वो हट जाएगी। ठीक है, यही सेम चीज़ आपको इसके अंदर भी करनी है। ये पार्टी का लेजर देखिए जैसे ऑल्टर किया, यहाँ पर देखिए ये जीएसटी नंबर कहीं ना कहीं रॉन्ग डाला हुआ होगा, तो ऐसे करते हैं। ये देखिए, तो जीएसटी नंबर अगर रॉन्ग डाला हुआ है तो इस तरीके का पॉपअप आएगा, तो उसको आपको वेरीफाई करके पोर्टल से और फिर करेक्ट वाला मेंशन करना है, देन एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ से ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। इस विंडो को अपडेट करते हुए इस तरीके से सेम चीज़ आपको शिफ्ट टू में भी करना है, किसी दूसरी पार्टी के नाम पे एंटर करके फिर इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये एंट्री यहाँ से हट जाएगी। नेक्स्ट देखिए टैक्सेबिलिटी टाइप का है। टैक्सेबिलिटी टाइप बोल रहा है इनवैलिड और नॉट स्पेसिफाइड। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हमने एंटर किया। अब ये देखिए ये रिसीप्ट की एंट्री है एक्चुअल में, और ये यहाँ पर दिख रही है R1 में, जो कि होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपके इसमें भी डेटा में ऐसी काफ़ी एंट्रीज होंगी, पेमेंट की, रिसीप्ट की, जनरल की, जो एंट्रीज दिखेंगी अनसर्टेन। ठीक है, तो इसमें जस्ट आपको क्या करना है, ऑल्टर करना है। अब यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स रिफंड का एक लेजर है जिसके अंदर जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल हुआ है। ठीक है, जबकि इसका जीएसटी से कोई रोल नहीं है, तो इसको मैं क्या करूँगा, नॉट एप्लीकेबल करूँगा और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए करके, एंट्री को भी सेव कर देंगे। ठीक है, तो वो एंट्री हट जाएगी। देन यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एरर वही आ रहा है, HSN रिलेटेड डिटेल्स जो है आपकी वो इनवैलिड है और नॉट स्पेसिफाइड है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए क्या क्या सिचुएशन है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये एंट्री मैंने खोला, एंट्री में हम गए, यहाँ पर हमने ऑल्ट ए किया। ठीक है, ऑल्ट ए करने पर यहाँ पर HSN कोड नहीं आया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सोर्स जो है, सोर्स ऑफ जीएसटी रेट डिटेल्स तो लेजर से पिक कर रहा है, बट HSN का जो है वो नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो HSN में हम क्या करेंगे, इसको ऑल्टर करके देख लेंगे। अब यहाँ देखिए डला हुआ ही नहीं है, तो अगर आपका HSN मेंशन नहीं होगा तो भी अनसर्टेन में ही जाने वाली है एंट्री। तो यहाँ आपको स्पेसिफाई डिटेल हेयर करना है और मेंशन कर देना है। ठीक है, HSN कोड डालने के बाद इफेक्टिव डेट आपको डालना है।
तो वाउचर का जो डेट है मैं वाउचर का डेट ही डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और टैक्स रेट भी आपको यहीं पे मेंशन करना है, जैसे 18% है तो 18% डाल देंगे, सेम चीज़ हम यहाँ मेंशन करेंगे 15 तारीख। उसके बाद मैं इसको एक्सेप्ट कर दूँगा, ठीक है। अब एंट्री के टाइम पे यहाँ पर मैं उसको सेम चीज़ सेलेक्ट करूँगा, टैक्स रेट यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पे HSN के लिए पूछना है तो HSN में ये आ जाएगा अपना, ठीक है, आइटम, और उसका HSN कोड आ जाएगा जो आपने डाला हुआ है। अब मैं अगर ऑल्ट ए करता हूँ तो यहाँ देखिए HSN कोड आ गया है, ठीक है। सेकंड वाले पे नहीं है तो सेकंड वाले पे में भी सेम चीज़ करनी है, और वो करके फिर आपको एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तो वो एंट्री भी आपकी हट जाएगी उससे। अब इसके बाद नेक्स्ट एरर जो आ रहा है अपना, इसके अंदर क्या है, अनेबल टू डिटरमाइन ट्रांजेक्शन टाइम। कुछ एंट्रीज इसके अंदर भी दिखेंगी आपकी, जैसे कि मैंने कहा था, जैसे जनरल वाली एंट्री दिख रही है यहाँ पे। तो इसमें भी अगर आपका उस पर्टिकुलर लेजर का GST से कोई रिलेशन नहीं है, आप उसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है। तो जस्ट आपको ऑल्टर करके देख देना है कि GST किस लेजर में एप्लीकेबल है। देखो जैसे यहाँ पर एप्लीकेबल है, मोबाइल परचेज किया उसमें यहाँ पे GST लगा रखा है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको रहने भी दे सकते हैं अगर ये JB की एंट्री है, ठीक है। अगर सेल्स रहेगा तो आपका सेल्स में सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज इस वाली एंट्री को आप रहने भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद GST रेट डिटेल्स आर ओवर रिटन। और इस एंट्री को देखते हैं इसके अंदर क्या मिस्टेक है। एंट्री में गए, ये किया यहाँ पर, और यहाँ देखिए यहाँ क्या मिस्टेक है। यहाँ पर क्या हुआ है कि आपने मैन्युअली ओवरराइड किया है, ठीक है। तो ओवरराइड अगर आप करते हैं तो उसको आपको फिर ओवरराइड दिखाना पड़ता है, कि आप क्या कर रहे हैं, आपने जो मास्टर में डाला हुआ है उसकी बजाय आप खुद से मेंशन कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वो एंट्री बेसिकली ओवरराइड में जाएगी। तो आप इसको चाहे तो एक्सेप्ट एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी और आपकी रिटर्न्स में इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपने बाय मिस्टेकली ये किया है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं एज पर मास्टर लेकर। एज पर मास्टर लेंगे तो यहाँ पर वो जहाँ पर हमने डाला होगा टैक्स है तो वो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एज पर मास्टर लेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने एज पर मास्टर लिया तो यहाँ पर वो HSN नहीं आया। और HSN क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे डाला हुआ नहीं है, ठीक है। तो जो आइटम है उसके अंदर आपको फिर यहाँ पर जा करके और स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जो HSN कोड होगा वो आप डाल करके फिर आपको यहाँ डेट डालनी पड़ेगी। उसके बाद टैक्स रेट भी आपको इधर डालना होगा। और उसके बाद आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा। फिर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये देखिए, पहले यहाँ पर सिर्फ GST सेल्स का लेजर दिखा रहा था, अब यहाँ स्टॉक आइटम भी दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना होगा। टैक्स रेट का तो चॉइस है आपका, आप यहाँ से भी लेंगे तो भी 18% ही लगेगा, वहाँ से भी लेंगे तो भी 18% लगेगा, ठीक है। बट HSN में आपको ध्यान रखना है कि HSN जो आपको चाहिए वो आना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। एक्सेप्ट हो गया, ये एंट्री यहाँ से हट गई। अब इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका एप्लीकेबल टैक्स लेजर इज नॉट सेलेक्टेड। इसके अंदर देखिए कितनी एंट्रीज दिख रही है आपकी, सेल्स की एंट्रीज है सारी, और बोल रहा है कि टैक्स का जो लेजर है वो आपने सेलेक्ट नहीं किया है। अब मैंने ऑल्ट ए किया, यहाँ पर ऑल्ट ए करने के बाद मैं ऑल्ट एफ ऑन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम में क्या लिखा आ रहा है, मिसमैच इन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हम देखेंगे कि अपना स्टेट क्या है, अपना स्टेट है महाराष्ट्र, ठीक है। और पार्टी जो है सामने वाली वो कहाँ की है, गुजरात की। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली लगना क्या चाहिए, IGST,
ठीक है, हम इधर गए, यहाँ से एंटर करके अब देखिए यहाँ पर ये जीएसटी सेल्स करके आ रहा है, ठीक है, लोकल सेल्स टैक्सेबल, तो ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर जैसे आइटम लेता हूँ टैक्स रेट, तो देखिए दोनों में फ़र्क आपको दिखेगा। अगर मैं सेल का लेजर ले रहा हूँ तो यहाँ पर लोकल सेल्स टैक्सेबल आ रहा है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर मैं यहाँ पर टैक्स रेट ले रहा हूँ तो यहाँ पर इंटर से सेल्स टैक्सेबल आ रहा है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो लोकल सेल्स टैक्सेबल वो इससे उठा रहा है, और क्यों उठा रहा है, क्योंकि इसमें डाला। अगर मैं इसको ऑल्टर करूँ, यहाँ मोर डिटेल्स में जाऊँ, शो मोर करता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। देखो जीएसटी रेट डिटेल्स, और यहाँ पर हिस्ट्री में जाएंगे, एंटर किया तो एंट्री के अकॉर्डिंग आपका ये जो है एप्लीकेबल है फर्स्ट वाला, क्योंकि 2023 की एंट्री है मार्च की, तो ये इसके अंदर लोकल सेल्स टैक्सेबल लगा हुआ, तो नेचर जो डला हुआ हो ना उसके अकॉर्डिंग वो एंट्री में भी उठाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन डाला हुआ है कि आपको मैन्युअली सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आइटम ले लिया, आइटम लेने के बाद यहाँ भी हमने आइटम ले लिया, तो HSN भी आ गया, टैक्स रेट भी आ गया। सेम चीज़ हम इसमें भी करने वाले हैं, इसमें भी हमने टैक्स रेट लिया, टैक्स रेट और ये ले लिया। ठीक है, तो इसके बाद मैं अगर इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो ये रिजॉल्व हो जाएगी, वो एंट्री यहाँ से चली गई। ठीक है, तो पहले 28 था, अभी 27 हो गया यहाँ पे। तो ऐसे ही सेम चीज़ आपको यहाँ पर हर बिल में फॉलो करनी है। ठीक है, ये सेम पार्टी के जो बिल्स हैं उनमें सब में आपको यही करना है। आपके सब में टैक्स रेट जो है यहाँ से लिया हुआ है लेकर से, तो ये हर आइटम में या तो आपको जा करके आइटम ना करना पड़े, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सोर्स को स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मैंने F11 किया, F11 करके इसमें जाएंगे सेकंड ऑप्शन में, यहाँ जाने के बाद यहाँ पर मोर डिटेल्स में जाएंगे, शो मोर करेंगे, यहाँ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन हिस्ट्री में जाएंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे। जैसे कि ये सेकंड वाला डाला हुआ है 1 अप्रैल 22 से स्टॉक आइटम, तो जो भी मैं न्यू एंट्री करूँगा उसमें सोर्स ऑफ जीएसटी रेट ऑटोमेटिकली स्टॉक आइटम से पिक करेगा प्रायोरिटी पे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ स्पेसिफाई करी है। तो एंट्री के टाइम पे आपको वो अगर नहीं भी सिलेक्ट करते हैं तो भी वो आइटम देगा। ठीक है, फिर यहाँ पर HSN का भी सेम चीज़ है, और यहाँ पे टाइप ऑफ सेक्शन पूछ रहा है, तो HSN मेंटेन करने के लिए होता है, बेसिकली ये ऑप्शन डाला है। इसके बाद यहाँ पर लेंथ पूछ रहा है, लेंथ भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मेथड आ जाता है, मेथड ऑफ जीएसटी कैलकुलेशन। इसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो जो भी आप न्यू एंट्री पास करने जाएंगे उस एंट्री में ऑटोमेटिकली वो आइटम से ही पिक करेगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ एंट्री अपने पास है ऑलरेडी जिसमें हमने आइटम में डाला हुआ है, और वो 1 अप्रैल के बाद भी है। तो हम क्या करेंगे, उन एंट्रीज को सेलेक्ट करके, ये सारी एंट्रीज सेम है, तो इनको मैं क्या करूँगा, एक्सेप्ट एज इज कर सकते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। उसमें ये देखिए, इसमें जाएंगे, ये है, जैसे इनको आपने सेलेक्ट किया। ठीक है, मिसमैच वाले भी आप ले सकते हैं, जो जैसे कि ये वाली एंट्री अपनी आ रही थी, तो इन एंट्रीज को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके एक्सेप्ट एज इज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट एज इज के थ्रू पहले वर्क नहीं करता था, लेकिन अब आपकी एंट्रीज यहाँ से अगर वो पूरा डिटेल्स अगर करेक्ट हो गया आपकी, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। देन ये वाला हेडिंग देखिए, इसमें सेम चीज़ है जो मैंने बताया था आपको, मिसमैच बिटवीन एक्सपेक्टेड टैक्स अमाउंट और मॉडिफाइड टैक्स अमाउंट। ठीक है, तो इसके अंदर भी माइनर सा डिफरेंस होगा आपका, जैसे कि ये पॉइंट कट किया हुआ है, तो सेम चीज़ आपको इसमें करनी है, जो फिगर आ रही है उसको ही लेते हुए चलना।
ठीक है, यहाँ से नीचे को आते हैं, यहाँ पर देखिए मिसमैच विद इन द ट्रांजेक्शन। अब कुछ एंट्रीज ऐसी भी होंगी आपकी, जैसे कि ये एंट्री है, ट्रांजेक्शन कंटेन्स कन्फ्लिक्टिंग नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के बेस पे आ रहा है। एंट्री को ओपन किया मैंने, ऑल्ट ए किया, ऑल्ट F1 किया। यहाँ देखिए एंट्रीज आ रही है आपकी एक्सपोर्ट एलयूटी बॉन्ड के अंदर और सेल्स टू SCZ एलयूटी बॉन्ड। ठीक है, तो इस एंट्री में कोई एंड होकर के एंट्री हो सकती है, मल्टीपल नेचर नहीं हो सकते। ठीक है, तो वो आपको करना है। जैसे ये पार्टी है, यूपी की पार्टी है, यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर अदर टेरिटरी ले लेंगे अगर आउट ऑफ कंट्री का है। और इसके बाद यहाँ पर ये देखिए टैक्स रेट जो है अभी यहाँ पर लेजर से दिखाया हुआ है, और सेल्स टू SCZ यहाँ पर नेचर जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो यही सेम चीज फॉलो करनी है हर आइटम के लिए। सेल्स टू SCZ, थर्ड वाले पे भी सेम यही करना है, सेल्स टू SCZ। टैक्स रेट और HSM का ध्यान रखना है, हालांकि टैक्स रेट तो इसमें लग नहीं रहा है, इसको भी देख लेते हैं। डिलीवरी चार्जेस इसके अंदर यहाँ पे भी डाला हुआ है, टैक्स रेट और HSM। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक्सपोर्ट एलयूटी बॉन्ड के बेस पे जा रहा है ना, तो ये चीज़ आपको करनी है। अब यहाँ पर ठीक है, तो ऊपर आप जाएंगे इसमें, और अगर हम एक्सपोर्ट एलयूटी के बेस पे चले तो यहाँ पर हम फिर आइटम ले लेंगे। ठीक है, आइटम सेलेक्ट करेंगे तो एक नेचर हो जाएगा आपका एक्सपोर्ट एलयूटी का, उसके बेस पे ये इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा आपका। अब आप इस एंट्री को सेव कर लेंगे, एंटर करके ऑल्ट ए करेंगे तो यहाँ पर एक्सपोर्ट एलयूटी के बेस पर सारे बिल्स जा रहे हैं विदाउट टैक्स। ठीक है, Thank you, Payal and Tarun, for wonderful session. This session will be uploaded to our YouTube channel, so stay connected with our social media accounts. We conclude this session. See you in the next web. Thank you.